صلی اللہ وسلم علی النور المبین صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین صلی اللہ وسلم علی النور المبین احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اکرام، ناظرین اکرام، دعا کرتے ہیں بفضل اولیاء اکرام، بفضل پیر کامل سرکار زندہ نواز آپ لوگ بخیریت سے ہوں گے۔ آج قرآن پاک سورۃ 3 کی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو ہے بہت ہی خوبصورت بنایا، بہت بہترین انداز میں خوبصورت بنایا۔ اب یہ سوچنے کی آج صوفی کلاس سے ہم آپ کو سوچ دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کس طرح اچھے صورت میں بنایا۔ تو اس کے لیے ہمیں بات کو سمجھنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن اور انسان کو پیدا کیا۔ جن کو آنکھ سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ جن کا کام ہے آگ کا کام ہے جلانا، اور مٹی کا کام ہے انہیں نرم، اس میں کوئی بھی حرارت نہیں، ہمیشہ شانتی میں رہنے والا۔ اور جن کو ہمیشہ غصہ آتا ہے، انسان کو اگر غصہ آیا تو وہ بھی جن ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اولیاء کاملین آئے، انبیاء کرام آئے، اور انبیاء کرام کے سردار سید الانبیاء صاحب الاولاق احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے، انسانیت کو سمجھانے کے لیے آئے، انسان کو بنانے کے لیے آئے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کو ہم نے اچھے صورت میں بنایا۔ اگر دیکھو، اور ایک بھی سوچ دے رہا ہوں، جیسا جانور گائے پیدا ہو جاتی ہے تو فوراً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں کھڑے ہو جاتی ہے۔ اس کا بچڑا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ بکری کا بھی بچہ ایسا ہی ہے، گھوڑے کا بچہ بھی ایسا ہی ہے، گدھے کا بچہ بھی ایسا ہی ہے، اور مرغی کا بچہ بھی ایسا ہی ہے۔ پرندہ تمام چیز فوراً تیار ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا بچے کو 4 مہینہ تک پلٹی مارنے کو ہوتا ہے، اس کے بعد رینگنا شروع کرتا ہے، اور 1 سال ہونے میں وہ چلنے لگتا ہے، اور 2 سال ہونے میں بولنے لگتا ہے۔ تو انسان کا بچہ کو کتنا محنت سے، کتنے پیار سے، غریب کا بچے کو تکلیف ہے، لیکن کتنا بھی غریب ہو تو بھی ماں اس کو کتنے پیار سے دودھ پلاتی ہے، اس کا جو ڈریس کرتی ہے، اس کو نلاتی ہے۔ ابھی گائے کے بچے کو وہ اللہ تعالی نصیب نہیں دیا، مرغی کے بچے کو نصیب نہیں دیا، گھوڑے کے بچے کو نصیب نہیں دیا، کتے کے بچے کو نصیب نہیں دیا، بلی کے بچے کو نصیب نہیں دیا، لیکن انسان میں کیا ہے بدل، اور اس کا ایک ہی صورت جو بچپن کا صورت ہوتا ہے جانور کا، مرغیوں کا، چرند کا، پرند کا، تمام وہی صورت رہتا ہے، لیکن انسان کا دیکھو چھوٹا بچے کا صورت کتنا نور نلا نور رہتا ہے۔ اس کے بعد بڑھتا ہے، اس میں بڑھتا ہے 14 سال تک اس میں ایک نورانیت رہتی ہے۔ اب یہ نورانیت کو جو ہے اس پہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا زبان تیز ہونے لگتا ہے، ماں کو چلاتا ہے، باپ کو چلاتا ہے، دادا کو چلاتا ہے، دادی کو چلاتا ہے، لیکن دادا دادی بولتے ہیں بچہ ہے، چھوٹا ہے، پیار میں معاف کرتے ہیں، لیکن اس کے زبان میں انگار یعنی جن کا آگ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے آنکھ میں اب جو ہے اس میں آنکھ میں گندگی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کو گاڑی چاہیے، ہاں ہم کو سائیکل چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اس کے آنکھ میں ہرس پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس کو دوست لوگ بھی اس کو چڑھا دیتے ہیں تو اس کے کان میں بھی ہرس پیدا ہونے لگ جاتا ہے، اور
اس کے بعد اس کے دل میں بھی حرص پیدا ہونے لگتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے رسول نے بھی کہا حوست الخمسہ، یعنی کیا ہے؟ 5 حوث. یعنی کیا ہے؟ ایک چکھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، سوچنے کا اور ہاتھ لگانے کا، چھونے کا. یہ 5 حوث یعنی 5 آگ. ابھی آپ لوگ تو سنے ہوں گے ایک آگ، لیکن مالک نے یعنی مالک بولے تو انسان کے فطرت میں اللہ تعالی نے 5 آگ کو جو ہے چالو کر دیتا ہے، کیونکہ بنانے والا انسان کے جسم کو ابلیس ہے، شیطان ہے، جن لوگ ہے، تو وہ لوگ تو اپنا کام کریں گے. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ 5 حوث کو خاتمہ کرنے کے لیے پیری مریدی کی ضرورت پڑتی ہے. ضرورت کیا ہے؟ صوفی کا مطلب پاک انسان. اس میں حوث خمسہ نہیں ہوگا، چکھنے کا حوث نہیں ہوگا، دیکھنے کا حوث نہیں ہوگا، سننے کا حوث نہیں ہوگا، سوچنے کا حوث نہیں ہوگا، چھونے کا حوث نہیں ہوگا. وہ صوفی ہوگا. اگر تم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہو کہ میں مرید اور صوفی میں فرق ہے. مرید بولے تو ایک آدمی، ایک بزرگ سے، ایک ولی سے، ایک پیر طریقت سے مرید بننا، یہ سب پہ فرض عین ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مرید صوفی ہوگا. صوفی کا مطلب اولیاء یعنی پاک کرنے والے کو مقام اولا ملے گا، وہ ولی اللہ بنے گا. نہیں وہ خود ولی بننا. بہت جن ابھی آج کل میں ولی ہو گیا بولے تو میں بابا کا بہت خدمت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں بولنے سے وہ ولی نہیں ہے، وہ خادم ہے. ولی وہ جو ہے یہاں سے بیٹھ کر عرش اعظم تک اس کی پرواز ہونا چاہیے. تو ولی اللہ بننا چاہیے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ حوث خمسہ کو ختم کرنا پڑے گا. لقد خلق الانسان فی احسن التقویم، اللہ نے ہم کو اچھی صورت میں بنایا. اگر دیکھو میں زبان کے چکنے میں پڑ گیا تو میں جھوٹ بولنے لگ جاؤں گا، میں گندا کھانا حرام حلال معلوم نہیں ہے، دارو پینے لگ جاؤں گا، گانجا پینے لگ جاؤں گا، یا تو آج کل کیا بولتے گٹکا کھانے لگ جاؤں گا. تو یہ تمام کیا ہوگا؟ میرے زبان کا حوث خمسہ یعنی میں 5 حوث میں ایک حوث کو پورا کرنے والا، جو حوث کو پورا کرنے والا ولی بن نہیں سکتا. ولی بننا ہے تو آپ کو جو ہے زبان کا بھی لالچ کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے بعد آنکھ سے قرآن کو دیکھنا پڑے گا، اللہ والوں کے مزارات کو دیکھنا پڑے گا، مسجد کو دیکھنا پڑے گا. تو اس میں پیر کو دیکھنا پڑے گا، پیر کے تصور کرنا پڑے گا، پیر کے تصویر کو دیکھنا پڑے گا. تب جا کے کیا ہوگا کہ تم کو کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم نہیں، پیر کا تصور ہوگا آنکھوں میں. تو خیال یار میں اگر تم گھومو گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تم کو کامیابی ملے گی. اب یہ گوگل میٹ اور یوٹیوب کے اندر آپ کو یہ تمام چینلز آپ کو لوڈ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ابھی کان میں اگر ہم دنیا کی بات یا ہمارے سامنے موبائل کے سامنے ایک گندا فوٹو آ گیا، ابلیس بول رہا ہے کہ کلک کرو، لیکن نہیں، میں پیر کا مرید ہوں، میں کلک نہیں کروں گا. ابلیس بول رہا ہے یہ فوٹو میں کلک کرو، اس کا بات سنو، تو اس کا بات میں نہیں سنوں گا، میں اپنے پیر کا جو ہے نورانی پیر صوفی ٹاک کو میں سنوں گا، تو میں ان کے بات کو سنوں گا بول کر میرے گھر بات آیا تو سمجھو کہ تمہاری کان زندہ ہو گیا. اگر نہیں گندائی دیکھنے لگیں گے تو کچھ نہیں کر سکتے. تو حوث خمسہ زندہ ہو گیا. یہ آنکھ اور کان تمہارے کو کیا کرے؟ گندا چیز دیکھ لیے، موبائل میں ایسا ڈالا جا رہا ہے تاکہ ان کا دھندا بزنس ہو جائے، ایڈ آتے ہی رہتا ہے. لیکن وہاں تم کو روک لگا دیں گے، کیونکہ آنکھ اور کان جو کیا کر رہا ہے؟ حوث دل میں پیدا کرتا ہے. تو آنکھ اور دل سے جو ہے دل کو کنیکشن ہو جاتا ہے اور دل میں گندگی شروع ہو جاتی ہے. اب گندا تمہارے ایک گندا دیکھیں گے تو ایک ہفتہ بھر تم کو وہی دکھتا رہے گا، اس کا ہی خیال آئے گا. نماز پڑھ رہے تو وہی خیال آئے گا، تمہارا کوئی کھانا کھا رہے تو وہی خیال آ جائے گا. کیونکہ لوگ بیجی اس لیے رہے ہیں کہ تم کو گندا بنانے کا ہے، حوث خمسہ کو بڑھانا ہے. حواس خمسہ اس کے لیے ہم مسلمانوں کی عورتوں کو برقع اس کے لیے پہنایا گیا ہے کہ عورتوں کا
औरतों को हवस नहीं कम है, इन आदमियों को हवस ज्यादा है, लेकिन अगर बेपर्दा औरत घूमती है तो आदमियों को हवस बढ़ जाता है। तो इसके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा, ए मेरे मुसलमानों के माँ बहनों, मेरी बेटियों, तुम क्या करो, बुर्का पहनो ताकि तुम भी गुनाह से बच जाओ और उम्मत मुस्लिमा को भी बचा लो। लेकिन लोग नहीं, हम बुर्का नहीं पहन रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हवस का वो जो है वो नहीं बनती है, लेकिन उसके साथ हजारों लोग वो भी गुनहगार हो जाते। सूफिया किराम के नजदीक उसने बुर्का नहीं पहना, अपने इज्जत और आबरू की हिफाजत ना की, वो जो है क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन रही है जिससे लोगों के दिल के अंदर हवस पैदा हो रहा है, तो वो भी गुनाह का कारण है, वो भी गुनहगार हो जाती। इसके लिए हमें क्या करना है, आंख और एक कान बहुत डेंजर चीज है, इसके अंदर हवस कम। और अल्लाह के रसूल ने कहा 8 बार, कितना बार, 8 बार इसको रिजेक्ट कर दो। हदीस कुदसी में है, अल्लाह के रसूल का कौल है, कमली वाले कहते हैं इब्लीस को 8 बार तुम रिजेक्ट कर दो। ये गंदगी चीज को, तुम्हारे सामने गंदा फोटो आ रहा है, उसको रिजेक्ट कर दो, 8 बार रिजेक्ट करो, 9वां बार ये नहीं आने वाला है। ये समझ लीजिए, 8 बार इसको रिजेक्ट कर दो, 9वां बार ये नहीं आने वाला है। इससे ये भी पता चलता है, 8 बार पीर का तस्वर कर लो दिन भर, 8 बार सुबह उठते साथ ही पीर का तस्वर करो, सोते वक्त तक पीर का तस्वर करो, खाने के वक्त में पीर का तस्वर करो, पीने के वक्त में पानी का पीने के वक्त में तस्वर करो, काम करते वक्त तस्वर करो, नमाज के वक्त तस्वर करो, हर वक्त करते जाओ। तो इंशाअल्लाह 8 बार तुम दिन भर जो है पीर का तस्वर करेंगे तो ये शैतान, इन्न शैतान इंसान अदू मुबीन, शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, तुमको कोई भी धोखा नहीं दे सकता है, तुम्हारे घर में घुस नहीं सकता है, वो तुमको कोई परेशानी कर नहीं सकता है। अगर तुमको कमालियत चाहिए तो 8 बार बताया। इसके लिए मोबाइल में भी 8 बार तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम आते जा रहा है, आते जा रहा है, तो 8 बार रिजेक्ट कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह 90 बार इब्लीस का खेल नहीं चलेगा। तो और इब्लीस परेशान हो जाएगा। अगर एक बार किया, दूसरे बार आया तो भी, तीसरे बार, चौथे बार भी क्लिक कर दिए तो समझे कि तुम उसके जाल में फंस गए। अब वो जाल का एक सप्ताह तुम्हारा खत्म कर देगा तो समझे कि तुम्हारी बर्बादी। तो लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह की बात को झूठा हो जाएगा। अल्लाह की बात को झूठ करने वाले कौन है, तुम हो जाओगे। तो इसके लिए अल्लाह की बात को झुटलाना नहीं है, अल्लाह की बात को मनवाना है। हाँ बेशक हमको मानना है कि अल्लाह ने हमें अच्छी सूरत में बनाया है और हमारा काम है सूरत के साथ सीरत भी बनाना है। और पीरी मुरीदी क्यों कर रहे हैं कि हमारे औलिया ने सीरत को बनाने के लिए। आज तुम्हारे पीछे हजारों रुपया खर्चा किया जा रहा है, गूगल मीट कोई फ्री नहीं आ रहा है, इसके पीछे लाखों रुपए का खर्च है, लैपटॉप लेना पड़ता है, इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है, इसका सब काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी क्यों औलिया खिदमत कर रहे हैं, ताकि तुमको ने औलियाए कामिलीन बनाना है। कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, हमको काम है, लेकिन हमें भी जरूरी है कि पीर का भी खिदमत करना चाहिए, पीर को भी ख्याल करना चाहिए। जो पीर का ख्याल करता है अल्लाह उसका ख्याल करता है, जो पीर का ख्याल नहीं करता अल्लाह उसका ख्याल नहीं करता। अभी इसमें भी बोलेंगे कि नूरानी पीर साहब ये बोल रहे हैं, नूरानी पीर साहब का मकसद ये नहीं है, बोलने का मकसद है कि 2 महबूब का, कब्र में आने वाले 2 महबूब कौन है, अल्लाह, अल्लाह के रसूल है। लेकिन अल्लाह को मैंने नहीं देखा और रसूल अल्लाह इस दुनिया में आए, लेकिन मैं उनके जमाने में मैं पैदा ना हुआ, मैं बदबख्त हूं। मेरे कब्र में मेरी बीवी नहीं आने वाली है, मेरे बच्चे नहीं आने वाले हैं, मेरे अम्मा आने वाले नहीं है, मेरे अब्बा आने वाले नहीं है, मेरे रिश्तेदार आने वाले नहीं है। मेरे कब्र में आने वाले 2 महबूब है, वो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल। दोनों भी दिखते नहीं है, यानी अल्लाह को भी मैं नहीं देख सकता हूं और मेरे चेहरे को भी मैं नहीं देख सकता, अल्लाह को भी मैं नहीं देख सकता और मेरे चेहरे को भी नहीं देख सकता। और रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए, लेकिन मैं उनके जमाने में पैदा ना हुआ, उनके और मेरे जमाने में 1500 साल का फर्क है। तो वो महबूब
को मैंने किस तरह बसाऊं, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला इजाजत दे रहा है अतीउल्लाह अतीउर रसूल उलुल अम्रि मिनकुम, वक्त के अमीर की। तो हमारी बड़ी खुशनसीबी है इस जिंदगी दौर के अंदर हमें सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का वास्ता मिला, उनसे हमें वसीला मिला, उनसे हमें मुरीदी मिली और कमा हक कहू का बात मिला, जिसके बुनियाद पर हमें आज फख्र कर सकते हैं। दुनिया में बहुत तरीक़त है, लेकिन ऐसा पीर कामिल जो मुरीद को बनाने वाला। पीर साहब लोग, बहुत पीर साहब ऐसे हैं जो अपना ही पेट भरते हैं, अपना ही काम करते हैं, लेकिन सरकार जिंदा नवाज एक अल्लाह वो हस्ती है जो आपने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, अपने लिए लाश वक्त कोई घर भी नहीं बनाया। और 20 से 25 साल अपने लिए ना कुर्ता न लिए आपने, और ना अपने लिए कोई चीज आपने नहीं लिया, अपने लिए एक क्या बोलते चप्पल भी आपने नहीं लिए। ये ऐसे कामिल बुजुर्ग हैं, इसके लिए अल्लाह ताला ने उनको कुतुबुल इरशाद बनाया। अगर उनमें थोड़ी सी भी नफसानियत होती कि मैं अच्छा खाऊं, नहीं आपने खाए, आपने अच्छा देखूं, आपने नहीं देखे, अच्छा सुनूं, आपने नहीं सुने, आप अच्छा सोचने कोई मेरे अच्छा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, आप में कोई नफसानियत न था। आपका आखिरी 25 साल अगर देखा जाए तो आपने अपने लिए 1 रुपया नहीं खर्चा किया। आप सरकार पीर जब 25 साल पहले जब सरकार पीर आदिल विजाब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस से आपने अपने तस्मे में 5,000 रुपया रखे थे, आपके आखिरी वक्त तक वो 5,000 रुपया था। तो ये समझ लीजिए कि आपने अगर 5,000 आपका खर्चा होता तो ये समझा जाता कि आप अपने लिए कुछ खरीदे हैं। तो 25 साल में, आपका आखिरी 25 साल में आप अपने लिए 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। तो ये से कमालियत रखने वाले बुजुर्ग से हमारा वाबस्ता हुआ, तो कितनी बड़ी खुशनसीबी है। इसके लिए उनका सिलसिला जिंदा नवाजिया हुआ। खादरी तरीकत के अंदर 1000 साल के बाद एक खानवादा उभर के आता है, जो खानवादा कहलाता है जिंदा नवाजिया। तो हम सब फख्र कर सकते हैं कि हम जिंदा नवाजी खानवादे के जो है मुरीदीन है, आशिकीन है, तालिबीन है। तो इसके लिए ये 1000 साल के बाद हमें अल्लाह ताला ने वो फखरिया बात दिया है। तो अब क्या है, औलिया अल्लाह चाहते हैं कि सिलसिले जिंदा नवाजियों से औलिया कामिलीन की जरूरत है। तो इसके लिए अभी किया जाए तो क्या किया जाए। अभी कोरोना ने भी 2 साल से बहुत परेशान करके रखा है। तो अल्लाह ताला ने ये करम है, औलिया अल्लाह का दिमाग में बात डाला गया कि गूगल मीट और यूट्यूब जो आजकल सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के जरिए जो सोशल मीडिया दुनिया को खराब करती है, उसी सोशल मीडिया का हर चीज का 2 पहलू होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो लोग नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, हमने पॉजिटिव को लिया और पॉजिटिव के साथ में आपके सामने हर जुमेरात को भी और जुम्मा को भी हम पेश होते हैं। इसीलिए पेश होते हैं ताकि हमारा नफ्स अगर देखेंगे, हमारा फैमिली देखेंगे तो सिलसिला तरक्की नहीं करेगा, औलिया अल्लाह नहीं बनेंगे। इसके लिए हमने भी अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, लेकिन एक हाथ से ताली बस्ती नहीं है, दोनों हाथ की जरूरत है। हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये काम आसानी से तय हो सकता है। आप लोग खतरे से अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाऊंगा। और ये भी नहीं कि आपको खतरे सपोर्ट करने से आप लोगों का काम खत्म नहीं होगा। मैं चाहता हूं जैसा कि मेरे साथ अभी तुम लोग 100 आदमी, 150 आदमी, 200 आदमी जुड़े हैं, इसी तरह कल मैदान महशर में भी जब मैं चलूंगा, मेरे साथ आप लोग का भी काफिला और अल्लाह का काफिला चलना चाहिए, ताकि मेरे पीराने उज़्ज़ाम को मैं बता सकूं, मेरे जिंदा नवाज बाबा को बता सकूं कि आपके जाने के बाद हमने जो मेहनत किया, इसमें देखो ये औलिया अल्लाह को पैदा किया गया, इसमें कुतुब को पैदा किया गया, इसमें नकबा को पैदा किया गया, इसमें अजबा को पैदा किया गया, इसमें वली अल्लाह को पैदा किया गया। तो ये वली अल्लाह बनना है तो हमको करना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा, जबान में झूठ बात नहीं होना चाहिए, जुबान में हर वक्त अच्छी बात होना चाहिए, और मिसवाक इस्तेमाल करे तो बहुत बेहतर है। हज़रत सअद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का छोटा सा किस्सा है। वो ये है कि इस्लामी फौज ईरान के सरजमीन पर
जो लड़ाई करने को जाती है, लेकिन पहले दिन साद बिन वक्कास अल्लाह ताला ने के फौज जो अमीर कारवां हैं, उनका फौज जो है फतह नहीं पाती है, हमें नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। तो साद बिन वक्कास अल्लाह ताला अन्हु अपने फौजियों से पूछते हैं कि हमसे क्या गलती हो गया। तो एक ज़हीफ सहाबी सामने आके बोलते हैं, आप गलती कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत था कि मिसवाक करना चाहिए, मिसवाक करके अगर हम लड़ते तो अल्लाह ताला हमें फतियाबी देता। तो साद बिन वक्कास अल्लाह ताला ने बोलते हैं कि तमाम फौजियों को जो है एक मिसवाक का इंतजाम किया जाए, और तमाम फौजियों ने को जो मिसवाक का इंतजाम किया गया। उसके बाद साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो गरीब फौजी जो आपके साथ जो कारवां में था, उससे बोलते हैं कि आपके दिल में अल्लाह के रसूल की इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह के रसूल ने हमारी निगहबानी कर दी है, तो आप दुआ फरमा दीजिए। तो वो सहाबी रोते हुए बोलते हैं, इधर तो बड़े बड़े जय्यद जो पहलवान और मजबूत सहाबा है, मैं तो एक ज़हीफ सहाबा, मेरे महबूब के लिए मैं कुर्बानी देने के लिए आया हूं, आप अमीर कारवां हो, आप ही दुआ फरमा दीजिए। लेकिन साद बिन वक्कास अल्लाह ताला बोलते हैं कि आपने एक सुन्नत को जिंदा किया, मेरे महबूब ने भी ये बताया, जो आप हमारे में जो गरीब है, जो नादर है, जो ज़हीफ है, जो बीमार है, उससे अगर दुआ करा दिया जाए, क्योंकि टूटे दिल में अल्लाह रहता है, टूटे दिल में रहता है। हम लोग तमाम खुश है, अगर आपकी जिंदगी को भी बनाना है, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, आपकी बिगड़ी को बनाना है, आपके कर्ज से निकलना है, आपकी बर्बादी से निकलना है, कोई गरीब कोई नादिर की दुआ ले लो, अल्लाह कामयाबी दे देगा। तो ये सहाबी से साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहते आप दुआ फरमा दीजिए। वो सहाबी की जब इल्तिजा सुनते हैं तो आप दुआ करते हैं कि कल सुबह तुलू होने से कब्ल हमें फतिहा भी मिलना चाहिए। तो उसी तरह इस्लामी फौज को फतह मिलती है एक मिसवाक से। तो हमें भी सूफी बनने के लिए तो एक छोटा सा एक अमल सिखाता हूं। कैसा मिसवाक, जब आप खाना खाएंगे तो उससे पहला अगर आप लोग मिसवाक कर कर खाना खाएंगे तो ये जो है क्या होगा, फायदे का खाना होगा। नहीं तो क्या होगा, नापाक जो थूक से आप मुंह नहीं खुले, हाथ धोते हो लोग, मुंह कुल्ला नहीं करते हो, जरा मुंह कुल्ला करके मिसवाक करके अगर खाना खाएंगे तो क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, हम हलाल खाएंगे। इसको बंदे नवाज बाबा कहते हैं, रिज़्क़े हलाल, अक्ले कमाल, दर्दने दिल बस अल्लाह अल्लाह। तो सूफियों को क्या पॉइंट मिल रहा है कि हमें ये पॉइंट मिल रहा है कि हमें खाना खाने के वक्त, चाय पीने के वक्त, नाश्ता करने के वक्त, या कुछ भी करने के वक्त, या नमाज पढ़ने से पहला हमको जरा मिसवाक करके अगर तुम कुल्ला करके, बहुत जन मैं देखता हूं कि सीधा मस्जिद में चले जाते हैं, नहीं, थोड़ा हाथ धोकर पैर धोकर अगर मिसवाक कर कर अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं। वजू तुमने किया, घर से वजू करके आए, बेशक आप वजू में हो, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा अमल मिसवाक, सूफी बनने के लिए अगर मिसवाक करके खाने के वक्त में भी, खास करके क्योंकि रिज़्क़े हलाल में तो मैं रिज़्क़े हलाल खा रहा हूं, लेकिन नापाक चीज है ना, हमारे नापाक चीज है, वो नापाक चीज मुंह में रहता है। जैसे कि लोग गुटखा खा के या कुछ भी खा के, सिगरेट पी के जो है क्या हो रहा है, खाना खा रहा है, तो नापाक अंदर जाएगा तो नापाक ही होगा। तो इसके लिए मेहरबानी करके जरा मुंह धो के मिसवाक करके अगर आप लोग खाएंगे तो क्या होगा आपको इंशाअल्लाह, क्या होगा, आप में रिज़्क़ हलाल पैदा, नहीं रिज़्क़ अंदर जाएगा, हलाल रिज़्क़ जाएगा, तो वो अच्छा काम करेगा। इसके लिए अगर ये मिसवाक का अगर जिंदगी में कामयाबी करेंगे तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया बरज़ख, ये बरज़ख के ही इसमें अगर दरूद शरीफ पढ़ते जाएंगे तो आपको
अपने जो है आज की जो मेरा जो पॉइंट लेके आया हूँ, लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तो मैंने अच्छे सूरत में बनाया। तो ये अच्छे सूरत में एक जबान भी है। ये जबान अच्छा हुआ, अगर किसका जबान सही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, या कोई क्या बोलता है तोतला है, तो उसकी बात हमको समझ में नहीं आती है। जिसका जबान क्लियर है, हमको जो अच्छे से बात समझ में आती है। तो इसके लिए अगर हमको देखो कर्ज कारोबार में भी हमें नुकसान हो रहा है, बहुत लोगों बोले हमारा जो है क्या बोलते हैं उस्तगार हमारा बात नहीं मानता है, हमारा बात फोन को काट देता है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक मिसवाक करके, एक मिसवाक, अपने छोटा सा मिसवाक ले लीजिए और मिसवाक करके उससे बात कीजिए, तो पाक बात होगा। जब पाक बात होगा तो अल्लाह भी होंगे, रसूल अल्लाह भी होंगे। जब जबान नापाक होगा, अल्लाह भी नहीं होंगे, रसूल अल्लाह भी नहीं होंगे। तो एक सूफी की एक छोटी सी एक अदना सूफी की बात आपको बतला रहा हूं। अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, वरना यह खाकी फितरत नूरी है नारी है। तो अमल करके, मुझे मेरे बच्चे लोग बात नहीं मान रहे हैं, जरा मिसवाक करके बच्चों को बात बोलो। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि तुम्हारे साथ अल्लाह भी होंगे, रसूल अल्लाह भी होंगे। मेरी औरत मेरी बात नहीं मान रही है, क्यों नहीं मानेंगे? जरा मिसवाक करके जो है उसको बात बोलो तो इंशाल्लाह मान लेगी। औरत बोलती है कि मेरा मर्द बात नहीं मान रहा है, वो भी जरा मिसवाक करके, यहाँ पाकी नापाकी की बात ही नहीं है, मिसवाक करके जबान को खुला करके और अल्लाह अल्लाह के रसूल को याद करके बात बोलिए, यकीन कामिल माना जाएगा। क्योंकि पाक बात है तो अल्लाह भी होंगे, रसूल अल्लाह भी होंगे। अगर पाक नहीं होंगे तो आप अल्लाह भी नहीं होंगे, रसूल अल्लाह नहीं होंगे। तो इसके लिए एक मिसवाक जिसमें हमको फतह मिल रही है, अल्लाह के रसूल ने साद बिन वक्कास अल्लाह ताला की बात से हमें समझ में आती है। तो इसी तरह अगर हम भी अपने जिंदगी में अभी नमाज पढ़ने में हमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा बाबा, तो ठीक है, जरा मिसवाक करके अल्लाह के सामने इल्तिजा कीजिए। जिक्र करने को हमको मन नहीं हो रहा है, ठीक है, जरा मिसवाक करके आप जिक्र करने को बैठ जाइए। मिसवाक करके तहज्जुद नमाज पढ़िए। मिसवाक करके जो है अपने पीर का तस्वुर करे। मिसवाक करके उरूस के लिए आइए। मिसवाक करके आस्ताने में जाइए, कोई भी आस्ताने में जाइए, पाक से दुआ करते हैं, मैंने अल्लाह से बहुत मांग रहा हूं, लेकिन तुम्हारा मिसवाक नापाकी से मांगोगे तो क्या होगा? इसके लिए पाक लोगों के लिए अल्लाह पसंद करता है तहारत। जब तक तहारत नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो तहारत चाहिए, जब तक तुम्हारे जबान में तहारत नहीं है कुछ नहीं होगा। और खाने के वक्त में खास करके रोड में खाते हैं तो वहां भी थोड़ा सा कुल्ला कर लीजिए या हाथ से मिसवाक कर लीजिए, तो इंशाल्लाह देखो आपको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में सच्चा और पक्का सूफी बना देगा। नहीं तो क्या होगा कि आ रहे हैं और जा रहे हैं और सूफी नहीं, अब और अल्लाह की बात को झुटला रहे। अल्लाह कह रहा है लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बहुत अच्छे सूरत में बनाया। उसका उसके जबान में नूरुन अला नूर है, उसमें उसके आंख में अल्लाह अल्लाह का रसूल का जो है तस्वुर है, दीदार है। उसके कान में अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात है, उसके दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल है। अब वो पीर परस्त है तो उसके सांसों में भी अल्लाह अल्लाह के रसूल है, उसके दिमाग के अंदर पीर का तस्वुर है, पीर का खुमार है, वो नूरुन अला नूर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पीर का तस्वुर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा डेंजर चीज है क्योंकि इसका रास्ता संडास और बाथरूम की तरफ है, इसको पाक करना पड़ेगा। और दूसरा जबान लेना पड़ेगा, वो तो भी तमाम को तो करना है, तो करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उसके लिए इल्म अमल की जरूरत है। देखो मैंने भी कितने हफ्ते से प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई पूछा नहीं है सवाल, तो हम लोग भी क्या बोल सकते हैं? क्योंकि अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, वरना ये खाकी फितरत नूरी है नारी है। अभी एक मैं जरी का काम करना चाहता हूँ तो पहला उसका खाका बनाया जाएगा, उसके बाद उसका छपाई होगा और उसके बाद काम होगा। कभी खाका ही नहीं बन रहा है, तो इतना मेहनत करने के बाद भी कोई मुरीद सामने आता ही नहीं है, तो बोले तो क्या बोले, चलो ठीक है, चलती का राम, चलते रहने का नाम है, और क्या करेंगे, दुनिया में परेशान क्या करेंगे। लेकिन खाका बनना चाहिए, खाका नहीं बन रहा है, तो खाका नहीं बनेगा तो छपाई कैसा होगा जिस्म में? अभी कम से कम 6 महीने से प्रोग्राम चल रहा है, तो खाका तो बन जाता तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाते, तो कम से कम छपाई करता तो अल्लाह तो कम से कम जो है वहाँ जरी का काम होता था, यानी
कुछ ना कुछ चादर बनता था, लेकिन नहीं बन रहा है तो हम क्या बोले, हाँ चलो चलता है, अभी क्या करेंगे। सब लोग बोलते हैं हाय राम, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये काम नहीं होगा। तो इसके लिए हमें अल्लाह की मस्जिद में भी नमाज पढ़ना है। नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आरिफ बनने के लिए स्कूल में 6 महीने का सब पढ़ाई हो गया है, लेकिन 6 महीने की पढ़ाई में बच्चा आगे नहीं जा रहा है, अभी करे तो क्या करे। तो ये सब सोच दे रहा हूं। तो इंशाअल्लाह हमें औलिया अल्लाह बनना है तो एक खाका बनाना पड़ेगा। अपने रोज का हिसाब किताब भी कम से कम 2021 में तो नहीं करे, कल 2022 से कम एक डायरी ले लीजिए, एक डायरी ले लीजिए। आज 2021 का आखिरी दिन है, अब 2022 में हम जाने वाले। एक डायरी में आज मैंने कितना जिक्र किया, कितना अच्छा काम किया है ना, मैंने कितना पीर का याद किया, कम से कम एक डायरी में एक साल में तो कम से कम लिखे, रोज एक 10 मिनट में सोने के वक्त में लिखे या दूसरा दिन लिखे, क्या क्या मैंने अच्छा काम किया, किसका इसका दुआ लिया। तो इसके लिए आज का तो माशाअल्लाह आखिरी दिन में, साल के आखिरी दिन के अंदर ये प्रोग्राम भी हो रहा है, जुम्मा का भी है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कामयाबी दे। लेकिन मैं तमाम को सोच दे रहा हूँ, सूफी बनना है। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचाना बस अपने रब को पहचाना। लेकिन जिसने अपने नफ्स को नहीं पहचाना तो नफ्स ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिन भर का काम क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मेरा कितना जिक्र हो गया है, मेरे जबान से कितने गंदा बात हो गया है, कितना अच्छा बात हो गया है, मैंने किसके दिल को तोड़ा, मैंने आंख से कितने गंदे को देखा, मैंने कितने को जो है वहां छोड़ दिया, मैंने उसके सोचा नहीं, कितने जन ने मेरे कान खराब कर दिए हैं, कितना जन ने मेरे गंदा बात, मैंने कितना अच्छा बात सुना, मेरे बाबा के सूफी टॉक के अंदर यूट्यूब के अंदर प्रोग्राम को मैंने कितना सुना। ये तमाम का एक जो है ताहिराना एक कैलकुलेशन करेंगे तो इंशाअल्लाह तमाम लोग 100 रुपए का डायरी ले लो, 50 रुपए का डायरी ले लो, एक किताब ले लो, तारीख के हिसाब से बनाइए, तो इंशाअल्लाह ये क्या होगा, बरनास शाह भी बहुत बड़े फिलासफर बने, ऐसा बने एक डायरी से। उसी तरह आपको भी एक माहिरीन बनना चाहिए, सूफी बनना चाहिए, तो आपको भी काम क्या करना पड़ेगा, अपना हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। अपने हिसाब किताब जिसने कर लिया तो समझो, नहीं तो बोलेंगे बाबा मैं मुरीद हूँ, कितना साल का, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 8 साल हो गया, तो तुम्हारा इच्छा, तुम्हारा मुरीद बोले तो तुम्हारा इरादा कहाँ पूरा हुआ? अभी तक मुरीद का तो मुरीद बोलना ही कितना बड़ा गलत बात हो गया। मुरीद बनने के बाद तुम्हारा इरादा होना चाहिए था कि मेरा ज़बान लिसानुल्लाह होना चाहिए, मेरा आंख बसीरुल्लाह होना चाहिए, मेरा कान समीउल्लाह होना चाहिए, मेरा दिल कुलूबुल्लाह होना चाहिए, मेरा हाथ यदुल्लाह होना चाहिए, मेरा जिस्म कुदरतुल्लाह होना चाहिए, मेरा नाक हयुल्लाह होना चाहिए। हुआ नहीं हुआ? बाबा मैं आपका मुरीद हूँ, बाबा को भी तकलीफ दे रहे हैं, बोले अल्लाह अल्लाह इतना पुराना मुरीद एकदम बेकार है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमें आगे बनना चाहिए, साकार सरकार बनना चाहिए। तो सरकार बनेगा तो अल्लाह की बात, लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बहुत अच्छे रूप से पैदा किया और उसकी सीरत भी अच्छा है। लेकिन देखा जाए जिंदा नवाज के साथ भी मुरीद बने हैं, लेकिन औलिया से भी मुरीद बने हैं, लेकिन देखा जाए कि मेरे कितने नमाज है, कितना मैंने रोजा रखा, पीर का मैंने रोजा रखा, या जुमेरात का मैंने रोजा रखा, मेरे इनकम के अंदर से मैंने कितना खर्चा किया, पूरा जो 100 रुपया आया 110 रुपया मैंने खर्चा कर दिया, मेरे जैसा माहिर कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये के अंदर सिर्फ 60 रुपया खर्चा करना है, 40 रुपया हमको देना पड़ेगा, तब जाके तुम आगे जाएंगे। पीर को भी नजराना देना पड़ेगा, दीन को भी नजराना देना पड़ेगा। तो पीर को भी नजराना देंगे तो पीर जो सिलसिले को आगे ले जाएंगे, और दीन को नजराना देंगे तो दीन आगे चलेगा। उसके लिए पैसे की जरूरत है, अगर तुम नहीं देंगे तो कैसा काम होगा। लेकिन हम नहीं, बोले बाबा मैं गरीब हूं, जिसने सोचा मैं गरीब है वो आगे जा नहीं सकता। जिसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, अल्लाह के रसूल ने बोला आगे जा नहीं सकता। बोलना चाहिए टाइम निकालना पड़ेगा, गरीबी को निकालना पड़ेगा, गरीबी को निकालना पड़ेगा। नहीं मैं गरीब हूं बोलने से कुछ काम होने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोग अभी परेशान इसीलिए कि सुस्ती मस्ती जबरदस्ती ये तीनों को छोड़ना पड़ेगा। हमको सुस्ती भी नहीं करना चाहिए, सुबह के नमाज के लिए उठना पड़ेगा और अपने पार्सल को लेना पड़ेगा। अल्लाह का पार्सल तुम्हारे घर पे नहीं आएगा, अल्लाह के घर में आएगा। अल्लाह का घर है मस्जिद, अल्लाह के घर में
تم نہیں جاتے ہیں تو کیا کیا جا رہا ہے؟ اب ایک گھر دوسروں کے حوالے ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرو، کم سے کم صبح کی نماز اور مغرب کی نماز کو مت چھوڑو، کیونکہ یہ 2 رکعت اور 3 رکعت کی نماز بہت ہی حکمت کی نماز ہے۔ جس نے یہ نماز کو پڑھا وہ کما حق کو اولیاء کاملین بن جاتا ہے۔ اس کے ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز بھی پڑھنا ہے، لیکن یہ نماز صبح کی نماز پرتھم نماز ہے جو ہمارے کو تمام اللہ کا جو پارسل ملنے والا ہے، تمام گفٹ ولی بننا ہے، تو آپ کو گھر میں بیٹھ کے ولی اللہ نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ کو پیر کا تصور کرنا ہے، پیر کا دیدار کرنا ہے تو آپ کو مسجد جانا پڑے گا۔ تو مسجد نہیں جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، تو مسجد نہیں جائیں گے تو ہاں بابا کے مرید ہے، لیکن ولی اللہ نہیں بن سکتے ہیں، ہے نا؟ تو ولی اللہ بننے کے لیے، اللہ کا ولی اللہ کا دوست بننے کے لیے، پیر کا دوست بننے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اللہ کا دوست بننا چاہیے۔ تو اللہ کا دوست بننے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ محنت کرنا پڑے گا، تب جا کے کامیابی ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن رشد و ہدایت کی بات ہے، نئے سال کی بات ہے، اس لیے تھوڑی بات کو ہم نے لمبی کیا۔ جو بھی بات ہم نے کیا، ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اس چینل کو آپ تمام کو سبسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اولیاء اللہ کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔